Hello, welcome to Ask Planets. So today I will talk about the eighth house. As per me, after the Lagan house, ascendant house, eighth house is the second most important house in the horoscope because in natural zodiac, or you say Kal Purush Kundli, you must be seen that the ascendant is ruled by Mars and the eighth house is again ruled by Mars. And we all know that eighth house is the Kundalini Shakti, the powerhouse of the horoscope. Okay, and it is the most important after the ascendant because we all know that seventh house from any house is the strength of that house, and every planet aspects seventh from itself. Okay, every normal planet and Mars, Saturn, Jupiter have some special full aspects, which are 5-9 for Jupiter and 4-8 for Mars and 3-10 for Saturn. Okay, they have the extra full aspects on these houses. But every planet aspects with its full aspect to the seventh house. But you must know that every planet also have 75% of aspect on the fourth and eighth house. Means if any planet is placed in the Lagan house, then it will aspect the fourth house with 75% strength and to the eighth house with the same strength. That's why if any planet is placed in Lagan, then that planet will affect the eighth house as well because it is aspecting through at least 75% aspects. That 75% aspect is not taken primarily. Okay, it is secondarily. Now see that from eighth house, the ascendant is the sixth. What is sixth house? Sixth house is your pending karma. Sixth house is your prarabdha. The sixth house is your depth of this birth. Okay, so what Lagan is the depth of the sixth house, or sorry, of the eighth house. That's why they both are interlinked, and it is very deep secret. And not only the eighth house, I must say that sixth house is also linked to the ascendant. But more than that, eighth house is more closely linked to the ascendant. Okay, in a benefic and in a malefic way. Now the planet placed in ascendant will create some kind of character, some kind of outer picture of the individual, but planet in eighth house or the planet influencing the eighth house strongly will show the internal nature of a person. Okay, and I will explain it that how it is so strong to show that. Okay, because it is the hidden part of your personality. Eighth house, we all know that it is sudden, it is longevity, it is a house of death, it is house of ending, it is house of transformations. Okay, apart from all this, what I'm telling you, please focus on that. Now see, from second house, it is the seventh. Okay, so it is the strength of your dhan, it is the strength of your speech, it is the strength of your wealth. Okay, but it can be enemy as well if second house and eighth house are inimical to each other. Now for example, Lagan house and the seventh house are the person and his spouse or her spouse. Now marriage can be very good or marriage can be very bad depending on the strength of the seventh house. So you understand why seventh from any house is so important. So second house is the wealth, and the strength of that wealth, that accumulated wealth, is the eighth house. Okay, so if eighth house is benefic, if eighth house is strong with respect to the second house, then wealth accumulation will be at its best. Now you see that ninth house, we all know that it is bhagya, it is fortune, it is the Lakshmi sthan. Okay, basically in Vedic astrology, fifth, ninth, and Lagan house are the trines, and if they make any connection with the second house and the 11th house of wealth, then it is a classical dhan yoga or wealth yoga. Okay, so second house is the accumulation of wealth and eighth from it is the ninth house bhagya. So somewhere you see that how eighth house, how ninth house is important for the wealth. Similarly, eighth house is important for the lagna. Okay, it is showing that
inner core of the lagna, inner core of an individual. Third house is the transformation because it is eighth from the eighth house. Third house is your siblings. Third house is your courage. Third house is your efforts. Okay, what is the prarabdha of that? What is the rin? What is the depth of that? What is the pending karma of that? It is eighth house. The unconscious, because third house is the unconscious mind. So whatever you do unconsciously is driven by the eighth house because it is the pending karma of that house. It is the rin. It is the obstruction also of the third house, the eighth house. Okay, so it is very deep. I am talking very deep today. So please try to understand it. If you practice on at least 50 to 60 charts, then you will be getting this technique that how you can use it, and it is very deep. I think that if I tell more about it, then that secret will slip out of my mouth, and it can be in some wrong hands as well. Okay, so I'm restricting myself here. Now coming to the fourth house. Fourth house is your character. Fourth house is your peace. What is the fourth house is also your mother, and eighth house is fifth from it. So it is the intellect. It is the progeny, it is the fruit of the fourth house. So if eighth house is afflicted, so if eighth house is very bad, then your peace, then the I will say that uh, your character and its mind, its intellect is not good. Okay, that again it is that inner quality of the person because your character and the mind of that character is the eighth house. Fifth house is your mind, and character of your mind is the eighth house. So they both are interlinked. Fifth house is your intellect. Fifth house is your mind. Okay, fifth house is your children. Fifth house is your education also. Okay, so fourth is the character. Now eighth house is fourth from the fifth house. So it is the character of your mind, character of your children. It is also peace of your education, peace of your mind. Okay, so you can see the houses from this way. Now very important is the sixth house and the eighth house. Eighth house is third from the sixth. So it is the unconsciousness of the prarabdha, and it is the prarabdha of the unconsciousness. Okay, so again they both are linked. It is very, very deep. Think about it. Now eighth house is also the expenses of the ninth house. Okay, so but remember, 12th house is the house of God. The help from the Almighty is the ninth house and the 12th house, because 12th house is the storage of the ninth house, and eighth house is the bhagya of the Almighty. Okay, so please do not consider eighth house as negative, because it is the bhagya which you will be getting from the Almighty, from the God. Okay, so if eighth house is strong, if eighth house is benefit, then you are getting some good things from the Almighty, from the God. Okay, that help. But if it is bad, then the energy coming from the outer world, from outer space, is not good for you. So this is very deep. Now the most important thing which can be is the eighth house is 11th from your karam of the 10th house, and it is 10th from 11th house of your desires, of your gains. Okay, so whatever actions, whatever karma you are doing, whatever deeds you are doing for the gains, for the desires, is the eighth house, and whatever are the gains of your karma is again the eighth house. So it can be bad, it can be good, whatever, because 11th house is also the lust. What is the actions of the eighth house? What is the actions of the 11th house? Is the eighth house, and we all know that eighth house is the house of intimacy. Okay, so because it is karma of the lust of the 11th house, and it is 11th from the 10th house. Okay, it is secretive. So many times you all have done something for the gains which is secretive, and most of the people do this. Okay, some secret actions to gain something. Okay, that is eighth house. And whatever karma you are doing, okay, it can be both negative and positive. Okay, the gains of your karam,
is also the eighth house. So whatever you will do, you are storing in the eighth house. You are gaining through the eighth house. Okay, so if you are doing bad, then you are again gaining that from the eighth house. But it is also the 10th from the 11th house. Okay, so you have to read it with respect to the houses. Okay, not alone. I hope that you get the point. Okay, I'm not explaining it more, but giving you the clues to use it, because it can be dangerous if I explain the deep secrets of the eighth house. It is very dangerous. It can be misused. Now let's see it with an example. This is the chart of Mahatma Gandhi, the father of nation of India, and he was the freedom fighter along with many others. But his role for the independence of India was very much more than others. Okay, now see his chart. What has changed him? See the eighth house. Eighth house is the house of transformation. In his chart, eighth house has Taurus sign. What is Taurus? Taurus is your face. Taurus is your face, and it is in the eighth house. Taurus is also the eyes. Taurus is also the money. Taurus is family. Taurus has many things, but it is also the face. What has transformed his life? Face. How? Saturn is aspecting the face, the eighth house, from the house of face, which is second house. Saturn is placed with the 12th P, 12th Bhavpad of Gemini. It is foreign. Saturn is Karaka of humiliation, significator of humiliation. It is aspecting 8th. Mars is Karaka of actions. It is placed with the 12th Lord. It is also aspecting the 8th house. He got slapped by a foreigner in train while traveling. Okay. See the third house. Third house is the house of travel, of short journeys. Okay. Ninth house is of the long journeys. The prarabdha of the third house is the eighth house. Okay, rin of the third is the eighth house, the pending karma. And here it is Taurus, the face, aspected by humiliation, Saturn from the second house of face also. Okay, and 12th P, foreign, aspected by Mars as well, which is again with the 12th Lord. Okay, foreigner and foreign, aspecting the eighth house of actions. What has happened? He got slapped, and that has changed his life. Okay, see. So here, what is the focal point? That how the prarabdha of the third house is playing its role, and how it has given the major transformation in his life. What has transformed him? Okay, so this is the case here. I am telling you a very subtle thing of his life, and no astrologer has ever written it anywhere. Okay, that how he got slapped, how we can see that slap and transformation in the life of Mahatma Gandhi. Okay, in this way we should see it, the eighth house. Now it is also the gains of your karam. Okay, it is also the gains of your karam. What he did, the karma house has moon and rahu in the fourth sign of the property of the land. Moon is an emotional planet, Rahu is a separative planet, and it is also Malich, foreigners. What is the gain of that karam? Separation of land, division of property. Okay, Rahu is a very well known separator. What is the gain of that karam? Is in the eighth house. It is again aspected by Mars, who is with the 12th lord, and Saturn, who is the fourth lord, who is the dispositor of Ketu as well. That Saturn is also giving the energies of the fourth house to the eighth house. So he did that. He did involved in that separation, and that was the cause of his death. Okay, he got shot. So in this way also, you should see the magic of the eighth house. Okay, so I have shared a very major thing, that how you can see the death, but I request all you that please do not use it for anyone, because it can be harmful for you. Okay, but you should know that how to see.
Now see the chart of Albert Einstein. In this chart, eighth house has Capricorn. Sixth lord Mars is exalted because it is sixth lord. It is 11th from the house of longevity. So longevity is good because generally Mars Rahu in eighth house shows the early death. Okay, but because many planets are in Kendra and 10th lord is in a good situation in the 10th house, so it is avoidable. Now see what is the focus of the 8th house here. Mars is energy. He did a lot of research about energy. E is equals to mc square. Mars is also the sixth lord of some kind of explosion, some kind of energies, some kind of war. Because of Germans, he had to shift his house because of that research purpose. Okay, enemies were created because of the research in the 8th house, that Mars. And what was the research? He gave the theory of relativity, he gave the theory of time and space, he gave the theory of wormhole, he gave the theory of other world, black hole concept, many things. Okay, and all these are seen by the Pisces sign. Pisces is the sign of other world, space, all those which are not known, that unorthodoxy. Rahu Ketu is the axis in the 2/8. It is well known axis of the uh, portal of the other world. Okay, so in this way you should see the 10th house because the Lord is placed in the Pisces. That's why the research was more towards the other world and all that thing. We can see many more things because in Namamsha it is Ketu, Mercury, Saturn. Ketu and Mercury are almost close to each other. Mercury is at 1058 degrees and Ketu is also at 1033 degrees. So they are very close. Okay, it is normally seen that whenever Ketu and Mercury or the degrees of nodes, Rahu Ketu, and degrees of Mercury are very close to each other, then it gives a very sharp mind, a very karmic mind. Okay, they do a lot of research. I have written an article. That article is still incomplete. Okay, but I have taken a lot of scientist chart where Ketu Mercury are almost on the same degrees. Okay, and they did phenomenal researches. You will find them. Okay, good doctors, good intuitive doctors having such Ketu Mercury close relationships. Okay, if you have that Ketu Mercury relationship in your chart, and you are just amazing. Okay, it can be very dangerous as well because it gives some kind of mental issues if it is in negative influence, but it is good for research. So in this way you can do the analysis of the 8th house and what we can see from the 8th house. I have told a lot of things. I hope that you will get it and you will not misuse it. I have not given that deep secret, okay, which people can use directly because it can be misused. People can use it for making a lot of money, and I am giving it out of any cost. Okay, so please respect my privacy for not giving that. And I hope that you would have liked the video. Please subscribe this channel. I will give a lot of techniques which you can apply, which you can think and make those techniques. Okay, I will give a lot of them. Okay, just subscribe this channel, help me to grow. Thank you. नमस्कार, आस्क प्लैनेट में आपका स्वागत है। मैं यशराज आज अष्टम भाव के बारे में बात करूंगा। तो अष्टम भाव जो है वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अष्टम भाव सबसे ज्यादा भयानक भाव है। लोग उसे बहुत ज्यादा निगेटिव कहते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक कहते हैं, हर तरह की बुरे फल बताते हैं और हर जगह लिखा भी हुआ है कि ये मतलब अच्छा भाव नहीं है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो बुरा भी है और अच्छा भी है। इस भाव के अंदर इतनी अच्छाइयां हैं और उतनी ही बुराइयां भी हैं जितनी अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो इस भाव को आज समझेंगे हम लोग कि ये भाव कैसे काम करता है, इस भाव के पीछे की चीज क्या है, ये भाव आखिर है क्या। मेरे हिसाब से अष्टम भाव लगन भाव के बाद, लग्नेश के बाद अष्टमेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। क्यों? क्योंकि अगर आप काल पुरुष कुंडली देखें तो जो मंगल है उसे काल पुरुष का लग्नेश बनाया गया है। मतलब काल पुरुष कुंडली में मेष लगन होता है और उसे उसका मालिक मंगल होता है। ठीक है,
और जो अष्टम भाव का भी जो स्वामी है, वो वहां पर मंगल ही होता है काल पुरुष में। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि अष्टम और लगन, इन दोनों का संबंध बहुत बहुत गहरा है। क्योंकि आप देखिए कि लगन भाव जो होता है वो आप हैं, किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को वो बताता है, और उसकी आयु को जो है वो अष्टम भाव बतलाता है। इसका अर्थ क्या है? अष्टम भाव सब लोग कहता है कि अंधकार है, डार्क है, ठीक है। मेरे हिसाब से और जो अष्टम भाव है वो पावर हाउस है, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग जो बाहर से देखते हैं, उसकी जो भीतर की जो सूक्ष्मता है ना, वो अष्टम भाव है। मतलब लगन जो आपको दिख रहा है, मतलब इंसान जैसा लगन में है, ठीक है, जैसा लगन बतला रहा है वैसा वो इंसान होता है। लेकिन अंदर से जो उसकी इन इनहेरेंट जो चीजें हैं, जो जो लेकर वो पिछले जन्म से जो लेकर आया है, ठीक है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो अष्टम भाव होता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लगन पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन अष्टम पे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है। तो इंसान कर्म तो अच्छे कर लेगा, उसका समाज में अच्छा सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर अष्टम पे निगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर वो इंसान जो होता है ना, वो अंदर से उसके अंदर काफी मलिनता होती है। ये इसकी सच्चाई है। अष्टम भाव और लगन भाव दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब लगन भाव अगर बहुत अच्छा हो गया, सिर्फ शुभ ग्रह हैं, तो कुछ हद तक वो कंट्रोल कर ले जाएगा। क्यों कर ले जाएगा, ये मैं आगे बताऊंगा। देखिए, लगन भाव जो है उससे अष्टम जो है वो 8 घर पीछे आगे होगा, और लगन जो है वो अष्टम से 6 घर आगे होगा। तो जो अष्टम का जो प्रारब्ध है, अष्टम के जो ऋण है, वो लगन है। तो अगर लगन पे बहुत अच्छे ग्रहों का प्रभाव आता है, तो अष्टम पर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जो लगन में हो, या फिर कोई भी ग्रह जो है वो अपने घर से 8वें घर को 3/4 दृष्टि से देखता है। मीन्स ऋषियों ने काफी एस्पेक्ट्स दिए, काफी दृष्टियां दी हैं, जिसमें से जो सामान्य ग्रह जो होते हैं, वो अपने से 7वें पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, मतलब 100% दृष्टि से देखते हैं। फिर अपने से चौथे घर में और अपने से 8वें घर में वो 3/4 मतलब 75% दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए लगन पर बैठे ग्रह का प्रभाव अष्टम पर आता है, और अष्टम में जो ग्रह है वो लगन को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, क्योंकि वो उसका पावर हाउस बन जाता है, ठीक है। तो अष्टम को हमने अभी लगन से देखा कि लगन से कैसा ये प्रभाव कर रहा है अष्टम भाव। अब अगर आप और थोड़ा सोचें, तो तीसरा घर, तीसरे घर से पहले मैं दूसरे घर पे जाता हूँ। हम सब लोग कह जानते हैं कि अष्टम भाव जो है वो आपका बिना कमाया हुआ पैसा है, बिना कमाई हुई चीजें हैं। सिर्फ पैसा नहीं, कोई भी चीज जो इस दुनिया में हमने कमाई नहीं है, वो है अष्टम भाव, ठीक है, जो अपने आप मिल जाता है पिछले जन्म की वजह से। लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से सच नहीं है। मैं इसे आगे चलकर बताऊंगा, देखते रहिए। देखिए, पहली चीज तो हम लोग समझ रहे थे कि वो आपकी अष्टम भाव जो होता है वो आयु होती है, बिना बिना कमाई हुई चीजें होती हैं। अष्टम भाव जो है वो सडननेस, अचानक का भाव है। अष्टम भाव जो है वो लंबी चलने वाली चीजों का भाव है, ठीक है। मतलब वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि शनि उसका कारक होता है। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, ठीक है। ये बेसिक सिग्निफिकेशन है जो आप किताबों में पढ़ सकते हो। लेकिन आपके धन भाव से अष्टम भाव जो है वो सप्तम होता है, ठीक है। धन भाव यानी दूसरा घर, उससे सप्तम होता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव जो होता है वो आपके धन की शक्ति होती है, कि आप कितना धन अर्जित कर सकते हो, ठीक है। हालांकि दूसरे भाव से जो अष्टम होता है वो नवम भाव होता है, आपका भाग्य। इसीलिए 5, 9 और लगन को हम लोग लक्ष्मी स्थान कहते हैं, ठीक है, कि ये लक्ष्मी स्थान है। और अगर धन स्थान से इसका संबंध आ जाए तो लक्ष्मी धन योग बन जाता है। मतलब 1, 5, 9 का संबंध 2 या 11 से आ जाए तो वो धन योग बनता है। लेकिन
जो अष्टम भाव है वो भी तो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है? क्योंकि किसी भी भाव से सातवां भाव स्ट्रेंथ होता है। तो इसीलिए अष्टम भाव अगर मजबूत होता है तो इंसान पैसे अच्छे जमा करता है, क्योंकि वो लगन का स्ट्रेंथ, जो दूसरा घर है उसका स्ट्रेंथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे नहीं। अष्टम भाव मजबूत हो गया, लेकिन दूसरे भाव के विपरीत कंडीशंस में मजबूत हुआ, मतलब कि दूसरा भाव कमजोर हो गया और अष्टम मजबूत हो गया। तो ऐसे में इंसान गरीब भी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दूसरा तो अपने आप में कमजोर है और अष्टम फिर वहां पे दुश्मन का काम करता है। देखिए देखिए, किसी भी भाव से जो सातवां भाव होता है वो या तो फिर उसका स्ट्रेंथ बनता है या फिर उसका दुश्मन बन जाता है, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आ जाता है। क्योंकि शादियों में क्या होता है, या तो फिर आपकी पत्नी आपका जीवन सँवार देगी, सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व रखती है, या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन लगन, मतलब दूसरे भाव का और अष्टम भाव का कैसा है। मैंने वो एग्ज़ाम्पल से बताया लगन और सप्तम का, कि पति और पत्नी के बीच, यहाँ पर दूसरे और आठवें का है। तो इन दोनों के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए, तब अष्टम का मजबूत होना दूसरे को फ़ायदा कर जाएगा, ठीक है? अब तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव आपके करेज का है। तीसरा भाव आपके धन कमाने की भवद भवम भी है, क्योंकि वो दूसरे से दूसरा है, ठीक है? तीसरे भाव को हम लोग इग्नोर करते हैं कि भाई तीसरा भाव अगर कमज़ोर हो गया तो इंसान करेज ही नहीं करेगा। बिना कर्म किए, बिना करेज किए फिर पैसे कहाँ से कमाएगा? अगर किसी ने दे के दिया हुआ है तो फिर वो बात अलग है, ठीक है? फिर वो घटता ही है, बढ़ता नहीं है। अगर तीसरा भाव दूसरे भाव के साथ मजबूत होता है तो फिर इंसान की पैसों में बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है? तो तीसरे भाव से जो अष्टम भाव होता है वो छठा भाव होता है। मतलब ये तीसरे भाव का प्रारब्ध है, तीसरे भाव का ऋण है, ठीक है? मतलब जो तीसरे भाव की घटनाएँ हैं, मतलब तीसरा भाव परिवर्तन का है, उसका प्रारब्ध क्या है? उसका डेब्ट क्या है? उसका ऋण क्या है? ठीक है? वो 8वाँ भाव है और 8वाँ भाव को भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ठीक है? तो इसको इस तरह से भी समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि अगर 8वें भाव की दशा चल रही है, तो फिर वो तीसरे भाव के प्रारब्ध को वो पूरा करके चली जाएगी। ठीक है? ये मैं महात्मा गांधी जी की कुंडली से बताऊँगा कि कैसे करेगी। तीसरा भाव आपके अनकॉन्शियस अ, एक्शंस का भी है, मतलब हॉबीज़ का है। अब आप भीतर से जैसे रहोगे, मतलब अब हॉबीज़ का प्रारब्ध क्या है और हॉबीज़ का पेंडिंग कर्म क्या है, ठीक है? वो 8वाँ भाव हो गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा कहीं न कहीं, अगर वो तीसरे भाव से उसका नेगेटिव रिलेशंस आ रहे हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी बनेगा और प्रारब्ध भी बनेगा, दोनों बनता है। तो अगर तीसरा भाव का प्रारब्ध देखना है तो अष्टम भाव को देखिए कि इंसान अंदर से है कैसा? जैसा अंदर से होगा वैसा ही उसकी हॉबी होगी, ठीक है? इस तरह से भी छठे भाव को आप लगन से करके देख सकते हैं। अब चौथा भाव इंसान के कैरेक्टर का होता है, इंसान की माँ का होता है। तो चौथा भाव जो है, उससे अष्टम भाव जो है 5 का संबंध रखता है, मतलब चौथे से वो पंचम है अष्टम, ठीक है? तो आपके कैरेक्टर की बुद्धि है, इसीलिए मैंने कहा कि लगन से अष्टम होना यानी कि वो आपके गूढ़ कैरेक्टर को दिखाता है, मतलब जो आपका छुपा हुआ है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, इसे इसे आप लिटरली मत लीजिएगा, ठीक है? तो चौथे भाव से अष्टम है। अब 5वें भाव को देखा जाए, 5वें भाव का वो सुख है, ठीक है? मतलब आपके विद्या का सुख है पंचम, अ, आपके विद्या का सुख है अष्टम भाव। मतलब आपकी जो ज्ञान है, उसका जो सुख है, वो अष्टम है। अगर अष्टम पीड़ित होगा तो फिर कितना भी ज्ञान हो, अंदर से तो मलिनता है, तो फिर उस ज्ञान का सुख नहीं मिलता है, ठीक है? देखिए अष्टम भाव कितना ज़रूरी होता है, इसीलिए अष्टम भाव में पाप ग्रह जो होते हैं, वो सुख मार के रख देते हैं, क्योंकि आपके सुख का तो पंचम हो गया, ठीक है? सुख का फल हो गया, आपके विद्या का, आपके बुद्धि का सुख हो गया, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ है अष्टम भाव। तो छठे भाव से तीसरा होता है, मतलब पेंडिंग कर्म का एक्शन है और वो एक्शन का पेंडिंग कर्म है, ठीक है? तो ये इस तरह से भाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी
पेंडिंग कर्म का, आपके शत्रुओं का एक्शन है, शत्रुओं का भाई भी है, ठीक है। शत्रुओं का अनकॉशियस करेज है, मतलब आपके पेंडिंग कर्म का करेज है, इसीलिए मैंने बोला फिक्स्ड है। पेंडिंग है तो वो पिछले जन्म से ही तो लेकर आए हैं, तभी तो वो पेंडिंग है। उसका करेज है, मतलब आप उसको पूरा करने के लिए कैसा करेज दिखाते हो, ठीक है। तो सबका मकसद वही निकल रहा है कि वो भीतरी चीज है। लेकिन अगर आप इसे और दिमाग लगाओगे तो आप इससे बहुत सी टेक्निक्स बना सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका पेंडिंग कर्म क्या है। बहुत बड़ी टेक्निक दे रहा हूँ पेंडिंग कर्मा की मैं ये, ठीक है। नवम भाव से 12वां है, तो ये तो काफी जगह पे लघु पराशरी में तो लिखा हुआ है कि नवम से 12वां है अष्टम, इसीलिए ये भाग्य का व्यय कराता है, तो बुरा भाव है, ठीक है। लेकिन वास्तव में अष्टम भाव बुरा नहीं है, पराशर जी ने इसे न्यूट्रल लिखा है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रल लिखा है। मतलब हल्की सी भी एफ्लिक्शन या हल्का सा भी शुभ प्रभाव इसकी नेचर को परिवर्तित कर देता है। मतलब बहुत ही ऐसा भाव है जो किसी का नहीं हो सकता है, मतलब वो परिवर्तन में रहता है हमेशा। अ, भाग्य का व्यय भी कराता है, ठीक है। लेकिन भाग्य का कुछ और भी कराएगा। भाग्य 12वां भाव क्या होता है? भाग्य का व्यय ही नहीं होता है। 12वां भाव जो होता है वो भगवान का भी भाव भाव होता है। भगवान मतलब जहाँ पे कोई नहीं मदद करता है, वहाँ पे 12वां भाव मदद करता है। तो भाग्य का 12वां अष्टम, मतलब और ये 12वें से नवम, मतलब कि जो भगवान का 12वां भाव है उससे नवम है, ठीक है। तो अष्टम भाव पे अगर शुभ प्रभाव होते हैं तो बुरी सी बुरी समस्या में, बुरी से बुरे समय में वो आपको लाभ करा कर जाता है, आपको उस संकट से निकाल कर लेकर आता है। वो संकट मोचन बनता है तब अष्टम भाव, अगर वो अच्छे प्रभावों में होता है तब, क्योंकि ये आपके भाग्य से 12वां है और 12वें से भाग है, ठीक है। अब इसके ऊपर विचार करिएगा कि मैंने ये क्या बोल दिया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये काफी डीप सीक्रेट्स हैं। 10वें का ये लाभ है और लाभ का कर्म है, ठीक है। मतलब कर्म का लाभ है और लाभ का कर्म है, ठीक है। 10वां भाव आपका कर्म, उसका लाभ 8वां अष्टम भाव। 11वां भाव लाभ है और उसका कर्म 8वां भाव, मतलब कि लाभ के लिए जो आप कर्म करते हैं वो 8वां भाव, आपके कर्म का जो लाभ है वो 8वां भाव। दोनों ही भाव इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। ये भी 8वें भाव की बहुत बेहतरीन खूबसूरती है जो मैंने अभी बताई। तो अब क्या है लाभ का कर्म, वो आप सब लोग जानते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, क्योंकि वो 11वां भाव लाभ ही नहीं है, वो लस्ट भी है। 11वां भाव आपका काम भी है, काम भाव का सबसे मजबूत भाव होता है 11वां, ठीक है। डिजायर है, उसके कर्म क्या है? सब लोग सामने से आकर नहीं करता है, और वो 8वां भाव है। तो अगर बुरे घर वहां पे ग्रह होंगे तो फिर कैसा होगा आप सब लोग समझिए। लेकिन मैं उतना, तो इसे और ज्यादा डीप नहीं करते हैं वीडियो को। कुछ 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे देखना है। तो देखिए, ये जो कुंडली है ये श्री महात्मा गांधी जी की है, हमारे राष्ट्रपिता, भारत देश के, भारत देश को आजादी दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा, और भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। तो इनकी जीवन में परिवर्तन कहाँ से आया, इनका अष्टम भाव हम लोग देखेंगे। देखिए जो देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। अष्टम भाव में टॉरस राशि है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि चेहरा है, ठीक है। ये वृषभ राशि में 6th पी, छठा भाव पद बैठा हुआ है। जैमिनी अरुण पद जो है वो छठा है, मतलब कि 8वें भाव में कुछ किसी तरह की पनिशमेंट है, किसी तरह का वो पहले तो टॉरस आ गया, पहले तो यहाँ पे वृषभ राशि आ गई, ठीक है। तो वृषभ मतलब परिवर्तन क्यों होगा, पावर हाउस क्या है इस कुंडली का, क्या चीज इस इंसान की जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करेगी? चेहरा, ठीक है। धन, फैमिली, कुटुंब, ठीक है। चेहरा, धन, फैमिली, ये संस्कार, ये सारी चीज जो है वो इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। ये इसका इनहेरेंट हो गया। अगर यहाँ पर कुछ होगा तो बहुत लंबा इसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में पड़ी हुई ये राशि है। और अष्टम भाव का कितना कार्मिक रिलेशन है मैंने अभी बताया। तो क्या हो रहा है अब देखिए आगे। शनि महाराज इसे देख रहे हैं।
शनि महाराज जो हैं वो 12th पी में बैठे हुए हैं। शनि जो है वो ह्यूमिलिएशन का कारक होता है, मतलब कि किसी तरह की बदनामी का कारक होता है शनि, ठीक है? इस भाव को मंगल महाराज भी देख रहे हैं। मंगल एक्शन का कारक है। मंगल 12th लॉर्ड के साथ में है। शनि 12th पी के उसमें बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है। ये दोनों अष्टम को देख रहे हैं। कैसे परिवर्तन आया, क्या रिवॉल्यूशन हुआ, इनको एक फॉरेनर ने थप्पड़ मारा, ह्यूमिलिएशन हुआ इनका, इनकी बदनामी हुई। ट्रैवल के समय हुई, ट्रेन से जा रहे थे। थर्ड हाउस का 6th है, ऋण है ये तीसरे घर का, प्रारब्ध का, ठीक है? पनिशमेंट है, 6th पी है। ह्यूमिलिएशन देख रहा है, एक्शन देख रहा है 12th लॉर्ड के साथ में बैठ करके। ये चीज इनको बहुत हद तक प्रभावित करके चली गई और इनका जीवन परिवर्तित कर दिया। चेहरे पे मारा था थप्पड़, टॉरस है। ह्यूमिलिएशन शनि, ह्यूमिलिएशन किस बात के लिए, किस बात की बदनामी हुई? रंग, शनि सांवला रंग, मंगल थप्पड़ मारा। मंगल कौन है? दूसरे घर का। दूसरे घर का कितना प्रभाव है? दूसरा घर आपका प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है? आपका स्वरूप होता है। यहाँ पर अष्टम में जाकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर यहाँ पर अष्टम जो काल पुरुष का वो यहाँ पर आके बैठा हुआ है, ठीक है? ये चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और अष्टम पे ये दोनों देख रहे हैं। परिवर्तन क्यों आया जिंदगी में? क्योंकि इनको थप्पड़ मारा गया, और रंग की वजह से मारा गया। अंग्रेज ने मारा, ट्रेन में चलते वक्त मारा और बाहर निकाल कर फेंक दिया, ठीक है? तीसरा भाव का प्रारब्ध है, ऋण है। ये ऋण था इनका ट्रैवल करते वक्त का, ठीक है? तो ये होता है अष्टम भाव का प्रभाव। कितना गहराई तक इन्हें छूकर चला गया वो बात। कर्म का लाभ है और लाभ का कर्म है। ये तो बैरिस्टर बन के गए हुए थे, तो इन्होंने कर्म किया, ठीक है? कर्म कर दिया इन्होंने, और उसका लाभ इन्हें इस तरह से मिला। बाकी जो कर्म किए, और भी तो कर्म किए, मतलब एक तो इस तरह से मिला, और जो कर्म किए, देश के लिए लड़ाई करी, उसका लाभ कैसे मिल रहा है? यहाँ पर देखिए 12th लॉर्ड के अष्टमेश कहाँ चला गया? 12th लॉर्ड के साथ में, शुक्र मंगल के साथ, ठीक है? ये योग बनाकर चला गया, योग में है, तो अपने से छठे में गया है। तो लड़ाई करके इन्होंने अपनी जो भूमि है उसे वापस लिया, ठीक है? अष्टम का किस तरह से रिलेशन आ रहा है, ये आप देखिए कैसे परिवर्तन कर रहा है। पहले तो ऐसा कर्म किया कि बैरिस्टर बने और उसका लाभ मिला, फिर जब कर्म में बदलाव किया तो फिर उसका लाभ ऐसे मिल रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये रही कि चौथे में बैठे केतु का जो डिस्पोजिटर शनि है वो भी इसे देख रहा था। तो भूमि में परिवर्तन, भूमि की सेपरेशन के कारण बने ये, और उसकी वजह से इनका देहांत हो गया। मंगल भी देख रहा है, तो वायलेंट डेथ भी दिया, ठीक है? तो ये चीज जो है वो, अब देखिए ये एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली है। एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, बहुत रिसर्च इन्होंने किए, और इनके अष्टम भाव की क्या सिचुएशन है? अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं राहु के साथ में। मंगल राहु एनर्जी, मंगल ऊर्जा का कारक है, ठीक है? ये छठे भाव का लॉर्ड है, मुख्यतः लड़ाई वगैरह का भाव होता है। मंगल ऊर्जा का कारक है, वो अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक है? अष्टम का मालिक 10वें में चला गया। तो लाभ का कर्म, कर्म का लाभ क्या इन्हें मिल रहा है? रिसर्च। और इसका मालिक जो है वो 10वें में चला गया, ठीक है? ये शुभ ग्रहों के साथ में है, इसीलिए इनकी आयु उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ये केंद्र में है। और अष्टम में उच्च का मंगल भी है, षष्ठेश होकर के, क्योंकि छठा भाव अगर मजबूत हो जाता है तो आयु बढ़ जाती है, क्योंकि ये छठा भाव आयु का लाभ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इनकी आयु तो अच्छी रही, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया, इनके लाभ का कर्म क्या था? लाभ के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो ये किया, ऊर्जा का कर्म किया, ठीक है? E=mc² का इतना बड़ा फॉर्मूला दिया, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और भी बहुत सारे हाइपोथेटिकल थ्योरीज दी जो बाद में जाकर के सच होते दिख रहे हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि अभी
काफी चर्चे में था कुछ समय पहले तक, ठीक है? उसकी पिक्चर्स भी आई थी। तो ये राहु और मंगल जो हैं, ये कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बैठ करके। अब इसका लॉर्ड जो है वो पाइसेस में गया हुआ है। तो इन्होंने वार्म होल जैसी कुछ बात कही थी पिछले दूसरी दुनिया में जाने का, लाइट के हिसाब से, लाइट की स्पीड से चलने का। तो ये पाइसेस राशि जो है वो छोटी-मोटी राशि नहीं है, ये पिछले जन्म की राशि है, दूसरी दुनिया की राशि है। उसी के बारे में तो काम किया है इन्होंने, ठीक है? कर्क राशि जो है वो यहाँ पे मंगल उच्च का है। कर्क राशि ऐसी राशि है जिसमें सारे तत्व मिलते हैं, मतलब जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व सारे मिलते हैं, ठीक है? तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रिसर्च इन्होंने दिया। कर्क राशि कर्म की राशि है। इनका कर्म जो था वो रिसर्च में था पूरी तरह से। रिसर्च किस चीज़ का था? पाइसेस का था, ठीक है? 12th लॉर्ड भी आकर बैठा हुआ है। तो इस तरह से अष्टम भाव इनकी कुंडली में काम कर रहा है। अब देखिए ये अंतिम वक़्त तक काम करते रहे, ठीक है? यहाँ पर भी अगर पंचम भाव से देखा जाए तो ये अंतिम वक़्त तक काम करते रहे। तो आपने देखा कि कैसे अष्टम भाव काम कर रहा है। मतलब अष्टम भाव जो है वो बुरा नहीं है, ठीक है? वो रिसर्च भी दिखाएगा आपका। वो आपके जीवन में क्यों परिवर्तन आया वो दिखाएगा। आपके जीवन का केंद्र दिखाएगा अष्टम भाव, ठीक है? आपके जीवन का केंद्र दिखाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव को कैसे-कैसे देख सकते हैं वो मैंने बताया। सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो बहुत चीज़ें निकल जाएँगी मेरे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।